Hello, everyone. Welcome to SCube TV Global. I'm your host, Rajni Bharara, and today on the show, I have with me again a very special guest. Her name is Dr. Pradeep Kumari. She is a dermatologist. She has already been on SCube TV once, and she's again back on SCube TV Global this time. And today, again on this show, we are going to speak with her on skin problems and skin-related diseases. But before we start the show and before we start asking questions to her, we should would like to welcome her again on SCube TV Global. Hello, Dr. Thank you. Pradeep. Welcome to SCube TV Global once again. Thank you, Rajni. Thank you, everyone. Good evening. Thank you for having me here. And we will start with today's session wherein I would try to clear as many doubts as possible regarding the common skin and hair queries our audience may be having. So we can start with. Thank you so much, Doctor, for taking out time and coming to the channel and doing the show. Now, without wasting any time, I would like to directly jump to my very first question about skin. So, Doctor, what is the basic habit or what is the basic routine, I would like to say, to maintain and keep your skin healthy? Okay. So basic routine or habit starts with hygiene, Rajni, for anyone, be it at any age. So hygiene would take care of washing of the face, then nourishing it, not just face, it accounts for the entire body, including our hairs and nails. So the basic starts with hygiene, then we build up upon that to increase the health or nourishment. Because for us, skin is a mirror of internal health. So even the internal diseases are going to show up on the skin. और हेयर में चेंजेस दिखते हैं. तो अगर हाइजीन हैम्पर होगा तो इन्फेक्शंस जल्दी कैच करते हैं और अलग अलग एजेस से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं. जो बेसिक स्किन केयर रूटीन रहता है किसी के लिए भी, उसमें न्यूट्रिशन या हम क्या खाते हैं उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है. एंड having a healthy balanced diet is the baseline. Like someone who is taking care of all the hygiene but is not having sufficient nutritional capabilities, तो skin and hair में वो impact होता है and still a person can catch infections, or we would see dull skin, dull hair, hair fall, faster aging, easy catching of the infections. तो वो सब होता है. तो Dr. Pradeep, ये भी कहा जाता है, it is said that you should not be using face washes that are available in the markets, that the television advertises, because it has a lot of chemicals in it. But if I ask you as a doctor, and what kind of face washes should one use? I mean, because pH also has a great importance in, in face wash. So what kind of face wash should a person be using? Okay. रजनी जी, ये डिपेंड करता है कि किसी का स्किन कैसा है. कोई भी फेस वॉश या नेचुरल प्रोडक्ट जिसको हम वॉशिंग के लिए या डर्ट रिमूवल के लिए या क्लीनिंग के लिए यूज करने वाले हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिटर्जेंट एक्शन होना चाहिए. चाहे वो हमें नेचुरल कंपाउंड से मिलेगा या वो आपको पैक्ड एक बोतल में आएगा. डिटर्जेंट एक्शन टेक्स केयर ऑफ रिमूवल ऑफ डर्ट एंड डस्ट. अपने बॉडी का जो ऑयल सिक्रीशन होता है जिसका प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम करने का होता है, वो बहुत सारा डस्ट को एक्यूमुलेट करता है, या बॉडी का जो डेड सेल बिल्डअप स्टिमुलेट होता है या शेड ऑफ होता है वो स्टक रहता है, उसको वॉश ऑफ करने के लिए किस तरीके का फेस वॉश, सोप या बॉडी वॉश हम चुने, वो स्किन टाइप, एज और वेदर, इन सब तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा. जो पर्सन दिन भर बाहर धूप में काम करने वाला है, that person धूप में, धूल में, उनको थोड़े से हार्शर वॉशिंग की जरूरत हो सकती है. जो इंडोर रहने वाला है, डिहाइड्रेटेड रहने वाला है, एसी एनवायरनमेंट में रहने वाला है, उनको माइल्डर वॉशिंग लगेगा, चाहे वो फेस है, चाहे बॉडी है, चाहे हेयर्स है. वैसे ही एक्सट्रीम्स ऑफ एज, चाइल्ड एंड एल्डरली, जहाँ पे ऑयल सिक्रीशन कम होता है, उनको माइल्डर वॉशेस लगेंगे. जो एडोलेसेंट एडल्ट एज है, जहाँ पे अबंडेंट हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ऑयल सिक्रीशन है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट वाले सर्फेक्टेंट्स या वॉशेस लगेंगे.
सिमिलरली मेल एंड फीमेल स्किन में मेल्स का स्किन ज्यादा ऑयली होता है, थिक होता है, ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं, तो उनका सोप या फेस वॉश टाइप जो है वो फीमेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा हार्श रहेगा। ये हो गई जनरल बात। इसके अलावा जो आपने कैटेगराइजेशन किया कि ओवर द काउंटर या जो हमें पैक्ड मिल रहा है वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, तो दैट इज अ पार्शियल ट्रूथ। डे इन एंड डे आउट हम लोग जब एक एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक स्किन स्पेशलिस्ट पेशेंट्स देखते हैं, तो मोर ओपन देन नॉट वी कम अक्रॉस सिनेरियोज जहाँ पे लोग माइल्ड या नेचुरल समझ के ऐसी चीजें यूज करती हैं जो इमीडिएटली अगले 1-2 दिन में, 4 दिन में नहीं दिखाई देती कि स्किन को खराब कर रही है, बट क्यूमुलेटिव डैमेज कर देती है। तो हम लोगों को इन जनरल में ऐसा वहम हो जाता है कि मैं तो एलोवेरा जेल यूज कर रहा हूँ, या मैं तो बेसन लगा रहा हूँ, या मैं तो दूध से वॉश कर रहा हूँ, ये तो नेचुरल है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। बट वो क्यूमुलेटिव डैमेज हो के हम बीमारी की तरफ चले जाते हैं, एक्ने हो जाता है। लोगों को लगता है कि बेसन यूज करेंगे या कोई ऐसा रबिंग एजेंट यूज करेंगे, चंदन यूज करेंगे, मुल्तानी मिट्टी यूज करेंगे तो वो वॉशिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट दिस इज टू मच ऑफ अ जनरलाइजेशन। सिमिलरली हम ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि इट इज नॉट वन थिंग फिट्स फॉर ऑल। हर एक का स्किन अलग अलग है, हर एक का स्किन टाइप अलग अलग है, कंट्रीज में डिफरेंट है, वेदर्स में डिफरेंस है। हमारे भारतवर्ष में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेके अरुणाचल तक सब कुछ चेंज हो जाता है। तो जो सब बहुत अच्छा है एक पंजाब की ठंड के लिए, वो आंध्रा में नहीं चलेगा। इस वजह से इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। थोड़ा सा तो हमें अपना कॉमन इंटेलिजेंस उसमें यूज करना पड़ता है कि मेरा स्किन ड्राई है तो मुझे थोड़ा कम वॉश करना है, चाहे वो नेचुरली से कर रहे हैं, चाहे आप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हैं। कोई भी फेस वॉश या सोप आपको खिंचा खिंचा सेंसेशन दे रहा है वॉश करने के बाद, तो मतलब वो आपकी स्किन के लिए ज्यादा हो रहा है। उसके बाद में स्किन आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए, बिकॉज बॉडी इज एक्टिंग एज अ स्किन इज एक्टिंग एज अ लेयर, तो प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा ऑयल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा कि देयर इज नो प्रोटेक्शन, हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए, तो ऑयल कम्स विद द बैंड फेस पे जहाँ कैपेबिलिटीज पॉसिबल हैं, या स्कैल्प में, तो फिर ऑयली लगता है। तो ये विशियस सर्कल चलते रहता है कि मुझे लगा मेरा स्किन ऑयली है इसलिए मैं वॉश कर रही हूँ, वॉश ऐसी चीजों से कर रहे हैं जो हमें कभी नेचुरल लगती है, या हमें लगता है कि इसको वॉश करने के बाद मुझे बहुत क्लीन फीलिंग आता है, और उसकी वजह से फिर ड्राइनेस डैमेज बढ़ते रहता है। क्योंकि बॉडी में ये जो है, ये प्रोटेक्टेबिलिटी का जो फंक्शन है ऑयल सिक्रीशन का, वो इतना नहीं होता कुछ एरियाज में, जैसे लेग्स पे, आर्म्स पे, तो वहां पे ये क्रोनिक ड्राई डैमेज लीड्स टू रैशेस, बाकी कोई इंफेक्शंस। तो वी हैव टू बैलेंस थिंग्स, we have to keep things gentle, we should not be doing over washing, at the same time we should not be overwhelmed कि जैसे लोगों को डर लगता है कि हम हेयर वॉश ज्यादा करेंगे तो हेयर फॉल हो जाएगा, इस वजह से हेयर वॉश ही नहीं करते, तो ऑयल एक्यूमुलेट होते रहता है। जो नॉर्मल सिक्रीशन है वो तो बंद नहीं होने वाला, वही ऑयल जब एक्सेस में एक्यूमुलेट हो गया तो उसकी वजह से इंडिया जैसे टेम्परेट कंट्री में हम लोगों को डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर इश्यूज ये शुरू हो जाते हैं। तो वॉशिंग से रिलेटेड जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो सभी हाइजीन और हेल्थ दोनों का बेसिक है, एंड थोड़ा सा उसमें इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चूज करना चाहिए, तो आप हमेशा अपने शहर के बाकी किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट की या हमारी मदद ले सकते हैं। तो डॉक्टर्स विल ऑलवेज हेल्प यू सेटल और सेटअप अ रूटीन जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप वो केयर कंटिन्यू कर सकें। Okay. That's a beautiful and a great explanation, Dr. Pradeep. Thank you so much for that. और इसी के साथ डॉक्टर, I would like to ask my next question, which is, कुछ pimples और acne तब होते हैं when a person is in their teenage, जब वो youth age में आते हैं, तो उस समय जो pimples, acne वो सब होते हैं। लेकिन कुछ acne तब होते हैं जब
24 की एज के बाद जो एक्नेज होते हैं, जो आई गेस हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं या किसी और रीजन की वजह से होते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो डॉक्टर प्रदीप, अगर मैं आपसे पूछूं तो जो टीनेज में जो एक्ने पिंपल होते हैं, उनका तो हर किसी को पता है और वो तो ऐसे कहते हैं कि होने ही होने हैं, लेकिन जो आफ्टर 24 होते हैं, उनका क्या कारण रहता है और उनको कैसे हम ट्रीट करें? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है रजनी जी। अच्छा हुआ आपने पूछा, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जब हम पेशेंट्स देखते हैं या डिफरेंट डिफरेंट पीपल देखते हैं और उनकी स्किन संबंधित समस्याओं की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी जैसे लास्ट 1-1.5 साल में लोग अंदर घरों में बैठे थे, कोविड की वजह हम्म। से सबको वर्क फ्रॉम होम था, तो भी इट इज एज इफ एक पैरेलली एक्ने का एपिडेमिक आ गया है। हाँ। क्योंकि अभी उसमें हाइजीन तो अफेक्ट नहीं हो रहा, बट एडल्ट एज में या अदरवाइज बहुत सारा एक्ने, नॉट जस्ट फीमेल्स, मेल्स को भी आ रहा है। तो इसके हम्म। पीछे डिफरेंट डिफरेंट वजह होती हैं। एक होता है डिजीज रिलेटेड, या देर इज सम इम्बैलेंस इन द बॉडी दैट कैन बी रिलेटेड टू एनी डिफरेंट सिस्टम, जीआईटी मतलब हमारे खाने से रिलेटेड सिस्टम की वजह से, या फिर हार्मोनल चेंजेस जैसे फीमेल्स में हो गए, या फिर कोविड के ड्यूरेशन में लोगों ने अंधाधुंध जो मिला वो सप्लीमेंट, ये नेचुरल है इसलिए हम खाते हैं, ये मल्टीविटामिन है इसलिए हम खाते हैं, और वो अंधाधुंध खाए उसकी वजह से, तो वेरियस वजहों से एक्ने शुरू हो जाता है। तो ब्रॉड कैटेगराइजेशन करें तो एक होता है जब आपको पता नहीं चल रहा कि ये चीजें आपकी स्किन के साथ सूट नहीं कर रही और आप वो लेते रहते हैं, हम्म। लगाते रहते हैं। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि रॉन्ग टाइप ऑफ फेस वॉश चूज कर रहे हैं आप, हम्म। तो दैट विल लीड टू एक्ने। और सिमिलरली रॉन्ग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हैं, लेयर कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे आपकी स्किन को, इंस्टाग्राम पे देख के, फेसबुक पे देख के, रील्स को देख, इंस्टा रील्स को देख देख के, जहाँ पे वेरियस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, वेरियस डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, तो बिकॉज दीज आर हम्म। अवेलेबल फॉर फ्री, तो यू आर अप्लाइंग, and then you realize ki 3-4 months later down the line, because this did not go well with what pore size a person had and the product which is coming from various places, तो एक्ने शुरू हो जाता है क्योंकि पोर्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। अपना जो फेस है या अपना जो बॉडी है वो ऑयल ग्लैंड्स का एक पाइप्स के जैसा सिस्टम है। ये पाइप्स हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं। ये ऑयल किसी भी वजह से अगर ट्रैप हो गया, बंद हो गया और सरफेस पे नहीं आया, तो इट विल एक्ट एज एन इरिटेंट। ओके, चाहे वो हार्मोन से हो रहा है, चाहे मेडिकेशन से हो रहा है, चाहे हम ऊपर से कवरिंग उनका इंक्रीज कर रहे हैं, टू मच ऑफ लेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आजकल जमाना है कि आप पहले सीरम लगाइए, फिर मॉइस्चराइजर, फिर विटामिन सी, फिर मेकअप, फिर सनस्क्रीन। तो देर आर many a times we see people layering up 10, 15, 7, 8 products on the Yeah. face, so that will lead to acne. Then like I mentioned कि कभी कभी हम कुछ मल्टीविटामिन या कुछ मेडिकेशंस जो कंपलसरी होते हैं वो लेते हैं, उनके साथ में एक्ने आ जाता है। एंड थर्ड एंड ब्रोडर कैटेगरी इज वेयर इन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ लाइफ, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और बॉडी में जैसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, थायराइड डेवलप हो रहा है, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके साथ में आया हुआ हार्मोनल इम्बैलेंस रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्किन टू गिव अस वार्निंग सिस्टम कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड उसकी वजह से आया हुआ एक्ने। तो ये मेन ओके। वजह है जिसकी वजह से एक्ने आता है। ओके, तो डॉक्टर, इनका ट्रीटमेंट कैसा रहता है? क्या एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर ही इसका ट्रीटमेंट हमको करवाना चाहिए, या वी कैन आल्सो डू इट इन अ होम एनवायरनमेंट? बहुत बार डर्मेटोलॉजिस्ट तक जाने की जरूरत नहीं आती है, स्पेशली जो रॉन्ग केयर एस्पेक्ट की वजह से होता है। इन दिस डेट एंड एज पीपल आर वेरी कॉन्शियस एंड वेरी वेल रेड, और सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स पे, कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आप बेसिक केयर आपका चेंज करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब आप घर पे ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो होम रेमेडीज से है, चाहे आप खुद से आपके प्रोडक्ट्स में थोड़े चेंजेस करके, क्योंकि जनरली सबको समझ में आता है कि ये रिसेंट चेंज था, इसके 2-3 मंथ्स बाद में आ गया,
तो मैनेज कर सकते हैं। बट आपको एफर्ट लेते हुए कि मेरा एक्ने कम हो जाए, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, 1 मंथ हो गया, और फिर भी आप देख रहे हैं कि देर इज नो चेंज, then it is no point in wasting time to go to a stage जहाँ पे आपको एक्ने के अलावा उसके स्कार्स और गड्ढे, स्कार्स और मार्क्स दोनों छूट जाते हैं, और फिर बाद में उसमें से कुछ कुछ चीजें फुल्ली कवर नहीं होती। तो यस, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप खुद से ट्रीट करें, खुद से ध्यान दें, बट एक पॉइंट के बियॉन्ड डिले करने में आप जो टाइम, एफर्ट, मनी जो भी खर्च करने वाले हैं कोई भी इश्यू को या प्रॉब्लम को ट्रीट करने में, और डॉक्टर के पास देर से पहुंचते हैं, तो फिर वो सब इंक्रीज हो जाता है, तो दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो ट्रीट कीजिए, घर पे कीजिए, बट उतना ही जितना लिमिट्स में है। जब समझ में आए कि ये बात अपने इससे बाहर है और अभी प्रोफेशनल हेल्प लगना चाहिए, तब उसके साथ ना खेलें तो अच्छा रहता है। डेफिनेटली अब वेरी इंपॉर्टेंट टिप डॉक्टर। तो डॉक्टर इसके साथ एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी रिसेंटली व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग about the steps, what kind of steps we should follow while taking care of our skin, at that time you actually mentioned that by looking at social media influencers and Instagrams and all these things, what we do is we bombard our skin with so many layers of moisturizer, sunscreen, hyaluronic acid, and vitamin C, and so much so. So if I ask you, can you please explain the correct procedure और correct routine जो हमारी स्किन को हेल्दी रखे और हमें बहुत ज्यादा स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत भी ना पड़े? ओके, तो इसमें दो दो तरीके से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं रजनी जी। एक जो हेल्दी स्किन है विच वी वांट टू मेंटेन और इम्प्रूव, एक जो प्रॉब्लम और डिजीज स्किन है वेयर इन वी हैव टू ट्रीट इट। ओके, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जिस तरीके की हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी स्किन विच वी हैव टू मेंटेन और इम्प्रूव और प्रिवेंट थिंग्स। कि लोगों को लगता है कि ठीक है, मैं विटामिन सी लगाऊंगा, हाइलुरोनिक एसिड लगाऊंगी, तो मुझे एंटी एजिंग इफेक्ट मिलेगा, ग्लो मिलेगा, हेल्दी स्किन मिलेगा, बिकॉज दैट इज आवर फर्स्ट विंडो इनटू जजिंग अ पर्सन और गेटिंग टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ स्किन दिस इज और फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो लेयरिंग या हमें क्या क्या लगाना चाहिए बेस्ड ऑन कि किसी का प्रोफेशन कैसा है, कहाँ पे वर्क करते हैं, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं। उसमें से सबसे जरूरी है मॉइस्चराइजर। तो बाकी कुछ करें या ना करें, आपको लगता है सनस्क्रीन यूज करें या ना करें, हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजर जरूरी होता है बेस्ड ऑन स्किन टाइप। जिनका ऑयली स्किन टाइप है उनको थोड़ा सा नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स यूज करने होते हैं। जिनका स्किन बहुत ड्राई है उन लोगों को थोड़ा सा थिकर मॉइस्चराइजर्स विच वुड गिव अ सीलिंग इफेक्ट भी चल जाते हैं। तो मॉइस्चराइजर, तो फर्स्ट स्टेप इन एनी स्किन केयर इज मॉइस्चराइजर। अभी जब ये अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं तो इनमें कभी कभी मॉइस्चराइजर के अलावा कम या ज्यादा कुछ और इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, जैसे सीरम। ये सुनने में अलग वर्ड लगता है या अलग कैटेगरी लगता है, बट सभी सीरम्स का जो बेसिक प्रिपोजिशन रहता है दैट इज हाइड्रेटिंग। वो थोड़ा सा लाइट रहते हैं, वाटरी रहते हैं, थोड़ा उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, इसलिए लगाते ही हमें इंस्टेंट बूस्ट मिलता है स्किन को, थोड़ा सपल फील होता है, सॉफ्ट फील होता है, और हम उसको एक अलग कैटेगरी का नाम दे देते हैं। इन अ सेंस इट इज अ मॉइस्चराइजर। नाउ कुछ सीरम्स में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं, जैसे hyaluronic acid which is a type of a moisturizer or a hydrating agent, और vitamin C which is basically an antioxidant जो हमें कुछ पिगमेंटेशंस को कम करने में हेल्प करेगा। तो अगर हमें एक बेसिक रूटीन फॉलो करना है तो सीरम लाइटर एब्जॉर्प्शन के लिए, देन अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन, ये भरा पूरा रूटीन है। सनस्क्रीन usually as a dermatologist, as a person, in my opinion, I suggest कि आप एक बार यूज कीजिए दिन में, जब आप इंडोर्स हैं, दिन भर आप डेस्कटॉप के सामने बैठने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा वहम होता है कि हम लोग तो बाहर जाते ही नहीं और हमें सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहिए। तो एटलीस्ट एक बार यूज करेंगे तो वो हेल्प करता है फोटो एजिंग को प्रिवेंट करने में। जब हम डे लाइट के जैसा एनवायरनमेंट सिमुलेट करके बैठते हैं उसमें वो एक
फॉलो कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड आता है डिजीज स्किन का केयर, जहाँ पे हम कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कुछ मेडिकेशंस यूज करना चाहेंगे। पर्सनली मैं सबको ऐसे सजेस्ट करूंगी कि वो सब शुरू करने से पहले, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल आउटसाइड ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स, आप एक बार पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेके फिर शुरू कीजिए। क्योंकि all through this lockdown and now when people are coming out, we are seeing more and more issues जहाँ पे लोग देख के अच्छा ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, and I come across scenario जहाँ पे लोग मुझे आके बताते हैं, डॉक्टर I have purchased products worth 70,000 over last 3 months 4 months, कि मुझे लगा ये सूट करेगा, मुझे लगा ये सूट करेगा, या इससे ऐसा होगा और अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक बार आप एक कंसल्ट करके आपकी स्किन टाइप के लिए जो चीजें हैं वो शुरू कीजिए। अगर आप खुद से शुरू करना चाहते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट को आप मैक्सिमम सेटलिंग इन टाइम 2 मंथ्स का दीजिए, कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए या थोड़ा माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए। अगर वैसा नहीं हो रहा है और आपका स्किन खराब होते जा रहा है, मतलब उसको तो बंद करना ही चाहिए और उसमें से जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करके लेना चाहिए। तो सिंप्लीफाइड मैनर में सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। इसके बियॉन्ड अगर आपको जैसे कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को फेस करना है तो डे क्रीम्स या नाइट क्रीम्स या एंटी एजिंग क्रीम्स, उनका ये आता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, my personal request to everyone is to first take a consultation and then start. Okay, great, great. With this, doctor, also my other question to you is कि जब स्किन में जैसे बहुत ज्यादा एक्ने हो जाती हैं और बहुत ज्यादा स्कार्स हो जाते हैं, निशान एक्ने के स्कार्स हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, तो व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट दो स्कार्स, और अगर वो हो जाता है उसके बाद उसको कैसे हम सही करें? इज देयर एनी पर्टिकुलर मेडिसिन या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट वन शुड बी यूजिंग टू गेट रिड ऑफ दोस स्कार्स? ओके, एक होता है जब एक्टिव एक्ने हो रहे हैं या पिंपल्स हो रहे हैं और उसी स्टेज पे हमें प्रिवेंशन करना है, तो उसके लिए सबसे सिंपल जो रूटीन है दैट इज मेकिंग श्योर कि हम एक्ने को पिक ना करें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन जितना देर रहेगा, जितना बढ़ेगा, उतना मार्क आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसको उसी स्टेज पे प्रिवेंट करें। स्किन को ड्राई ना रखें, स्कैल्प को डैंड्रफ फ्री रखें, और थोड़ा सा अपने डाइट में हम विटामिन्स, मल्टी न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनका इंटेक बढ़ा दें, तो वो प्रिवेंशन के जैसा वर्क करेगा और मार्क्स आएंगे ही नहीं। किसी को अगर ऑलरेडी आ गए हैं एंड इफ वी वांट टू डील विद देम, देन एट होम बेस्ड लेवल, जैसे अभी बहुत सारे ऑप्शंस इवन ओवर द काउंटर ब्रांड्स में जब अवेलेबल होते हैं कि आप ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हो, तो जैसे सभी को आजकल सुनने में आता है विटामिन सी, नियासिनामाइड, आर्बुटिन, दीज आर कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो आप यूज करके थोड़ा सा स्किन को हेल्प कर सकते हैं, लाइटन कर सकते हैं, मार्क्स को लाइटन कर सकते हैं। अगर उसके बियॉन्ड लेट्स से आपने 3-4 मंथ्स यूज किया फिर भी नहीं जा रहे हैं मार्क्स, तो फिर let a professional take care of it. Okay, okay. With this, doctor, also, a lot of time it happens कि जो एक्ने है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि कुछ एक्ने जो होते हैं वो चीक्स पे हो जाते हैं, और कई चिन एरिया पे बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के फोरहेड पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनका क्या कारण रहता है और उनके पीछे जो रीजन है वो क्या रहता है? जनरली अगर कोई हम डिफरेंट एरियाज की बात करें, तो अगर किसी को हेयर लाइन या फोरहेड पे एक्ने आ रहा है, तो बहुत बार स्कैल्प हाइजीन कम होने की वजह से या कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन की वजह से ये एक्ने आता है। अगर सिर्फ चीक एरिया में ही आ रहा है और अभी अभी शुरू हो गया है, तो वो रॉन्ग प्रोडक्ट या रॉन्ग स्किन केयर सेलेक्ट करने की वजह से होता है। होम रेमेडीज ज्यादा हो गई, रॉन्ग टाइप के फेस वॉशेस यूज करने की वजह से हो गया। जो अराउंड माउथ एरियाज में आता है, जनरली वो या तो सीजन चेंज के टाइम पे आएगा या ओकेजनल स्मॉल फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे आएगा, या फिर बहुत ज्यादा ऐसे एक्सेस स्किन ड्राई रह रहा है उस वजह से, इरिटेशन की वजह से आएगा।
कुछ कुछ इन्फेक्शन जो बॉडी पे है उसके साथ में भी अराउंड माउथ एरियाज में हो जाता है। अगर जॉ लाइन पे एक्ने आ रहा है तो फीमेल्स में मोस्टली इरेगुलर साइकिल्स, हार्मोनल चेंजेस इस वजह से आता है। मेल्स में रोंग बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स यूज करने में आए, बियर्ड लंबा हो गया, वहां पे इन्फेक्शंस हो गए, इनग्रोथ बहुत हो गया, शेविंग क्रीम का चॉइस गलत हो गया, तब आता है। ओके ओके, इनको ट्रीट करने का क्या तरीका है, या हमें क्या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर इसे ट्रीट करना चाहिए, या घर पर भी इनको ट्रीट करने का कोई एक इजी तरीका है? सो इजी तरीका जैसे मैंने बताया कि अगर शुरू शुरू में है, अभी अभी हो रहा है एंड यू आर एबल टू कोरिलेट कि मैंने ये काम शुरू किया या मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया तब से हो रहा है, मैंने जब से डैंड्रफ बढ़ गया तब से हो रहा है, तो आप उसको कट डाउन कीजिए और उसके साथ में वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। बॉडी इज वेरी वेल सेल्फ कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द माइनर इम्बैलेंसेस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months। उसके लिए थोड़ा बहुत ड्राइंग टाइप का होम रेमेडीज, चेंज ऑन द प्रोडक्ट्स यू कैन डेफिनेटली डू। अगर 2-3 मंथ से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है एंड नो मैटर कहाँ से शुरू हुआ था आपका एक्ने और पूरे चेहरे पे आ गया है एंड यू कांट रियली से कि मुझे सिर्फ यहीं पे ही होता है, दैट मीन्स आपको उसके लिए डॉक्टर की या डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। Okay, okay. Doctor, one of the major reasons that I actually, when I was, searching for the questions to ask from you, so I saw that a lot of people are having this complaint that they are getting pimples and acne because of constipation. तो ये कॉन्स्टिपेशन उनका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड फ्रॉम स्टमक, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो जो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो एक्ने रहता है और जो आता है, वो किस तरह का रहता है और उसको कैसे ट्रीट करें? जनरली स्टमक अपसेट्स या कॉन्स्टिपेशन की वजह से आने वाला एक्ने, जैसे मैंने अभी अभी बोलते बोलते बोला था कि अराउंड माउथ एरिया में आने वाला एक्ने कभी कभी कुछ इन्फेक्शन के साथ कोरिलेटेड रहता है। दूसरा जो चीक एरिया में जस्ट अपने बोनी प्रोमिनेंसेस के नीचे जो एक्ने आता है वो स्टमक अपसेट्स के साथ में कोरिलेटेड रहता है, तो उस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे बिगनिंग में जब हमने बातचीत शुरू की थी तब बताया था, तो ये अफेक्ट करते हैं चेहरे को। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म इश्यूज रहते हैं एंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर नहीं है, जनरली उन लोगों को चेस्ट एंड बैक, शोल्डर्स, ये एरियाज भी मीन्स लार्जर बॉडी एरियाज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब तक, जैसे मैंने कहा कि जब तक लोकलाइज्ड एक्ने है, सिर्फ यही आ रहा है, ब्रेसेस किसी ने पहने, टीथ ब्रेसेस, डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन रिसेंटली हो गया है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया, दैट मींस दीज आर टेम्परेरी इश्यूज, दीज आर गोइंग टू गेट रिजॉल्व्ड, so you can treat it at home or you can wait for it to subside. But when you say it is involving larger areas, day by day it is increasing, it is becoming itchy, painful हो रहा है, खुजली हो रही है, मतलब फिर वो बढ़ रहा है, तो फिर उसको स्कैल्प में आना शुरू हो गया है, स्कैल्प में एक्ने या बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं, दैट मींस इट हैज गॉन टू अ स्टेज वेयर सिर्फ इम्बैलेंस नहीं, इन्फेक्शन भी उसमें रिस्पॉन्सिबल पार्ट प्ले करने लगा है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट लगेगा। Okay, okay. Doctor, so before I let you go, one last question. How is consuming dairy connected with acne? क्योंकि a lot of dermatologists ask their patients to not consume dairy products. तो ऐसा क्या रिलेशन है डेयरी का और पिंपल और एक्ने का? ओके, डेयरी का दो तरीके से कोरिलेशन होता है। एक कुछ फूड्स को हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं, जहाँ पे आप लोग या हम लोग कोई भी जब खाना खाते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी बर्स्ट मिलते हैं एंड दैट लीड्स टू इश्यूज, क्योंकि सडन शुगर राइजेस होता है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जनरली एक्ने को हील होने में थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। लार्जर बॉडी एरियाज पे जिनको एक्ने है, हार्मोनल इश्यूज जिनको हैं, क्योंकि ये सडन एनर्जी बर्स्ट जो है वो पीसीओडी या बाकी हार्मोनल इश्यूज को बढ़ा देते हैं, तो उनमें हम सडन एनर्जी बर्स्ट वाले फूड्स इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स मना करते हैं।
डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ लोगों को, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस या स्टमक अपसेट इश्यूज जिनको होते हैं डेयरी के साथ में, they tend to have more loose motions, more irritable bowel syndrome और more digestive issues, उनको एक्ने इंक्रीज करता है। तो ये दो कैटेगरीज मेन है जहाँ पे ट्रेडिशनल विजडम की डेयरी प्रोडक्ट्स कैन एग्रेवेट एक्ने वर्क करता है। इसके बियॉन्ड एक थर्ड कैटेगरी है which is relevant today because the kind of forcing which happens for food or dairy products many times we are not able to trace. तो adulteration of food और adulteration of dairy products, जहाँ पे processed dairy products में कुछ mixing होगी, या फिर at the stage of production the animal from where the dairy product is coming may have been given hormonal injection. It is very common कि oxytocin injections are given to cows or buffaloes or wherever the production is happening, and उसकी वजह से वो hormonal ingredients वाला milk होता है, and that can backfire, can lead to acne, like because this sort of hormonal secretion happens in a new mother also. So neonate child also gets acne, neonatal acne, that is self resolving, क्योंकि वो हार्मोनल सिक्रेशन कुछ ही टाइम के लिए है इनिशियली जब चाइल्ड इज बोर्न, इसलिए वो एक्ने रिजॉल्व भी हो जाता है। बट व्हेन फूड इज कमिंग एडल्ट्रेटेड और डेयरी प्रोडक्ट इज कमिंग एडल्ट्रेटेड, देन विदाउट नोइंग अननोइंगली हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको, एंड वो ऑक्सीटोसिन जो लाइफ के कुछ इनिशियल मंथ में ही मिलता है या इनिशियल फ्यू वीक्स में ही मिलता है, उसका स्टिमुलेशन या उसका जो एक्शन है वो हर कोई जो उस मिल्क को कंज्यूम कर रहा है उसको होता है, और उसकी वजह से एक्ने बढ़ जाता है। सो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट इन दीज थ्री वेज इंक्रीजेस एक्ने, सो दैट इज व्हाई डॉक्टर इन जनरल मना करते हैं। ओके, तो क्या एक इंसान को डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? See, Rajni ji, it is a personal choice, but as long as you know कि this dairy product is not adulterated, तो definitely consume कर सकते हैं। जो लोग वेगन है वो नहीं करते हैं या वो उनका सेंसिटिविटीज है, वो डिसीजंस हैं, वो अपनी जगह पे हैं, बट इन जनरल ब्रॉड कैटेगरीज में डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट हार्मफुल। ओनली थिंग इज कि एट स्टेज टू स्टेज डिपेंडिंग अपॉन किसी पर्सन का खुद का इंडिविजुअल प्रॉब्लम या जेनेटिक कंपोजिशन या फिर एडल्ट्रेशन, दीज आर टू मेन एरियाज जहाँ पे हम ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शंस पुट करेंगे कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स मत लीजिए। Okay, so and also a person can also see for their self, as in if it is hampering, if you're finding it hampering your skin or hampering your body, then you should stop consuming it, and if it is not and it is making you healthier, then you should keep on. Yes, yes. जैसे मैंने देखा है कि मोस्टली जब ऐसा होता है कि डेयरी प्रोडक्ट से डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, तो most of the patients are very intelligent and they realize it before the doctor says कि डॉक्टर मेरा डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में बढ़ता है। तो उस तरीके के डिसीजंस जब आप मुझसे इनिशियली बीच में पूछ रहे थे कि एट होम ट्रीट कैसे करना है, सो दीज आर द काइंड ऑफ डिसीजंस व्हिच यू मेक कि अगर आपको डायरेक्टली लगता है तो डेफिनेटली आप बंद कीजिए, अगर उसी से आपके इश्यूज रिजॉल्व होते हैं तो फिर हम तक आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रदीप हमारे शो पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपने इतनी खूबसूरती से, इतनी बेहतरीन तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए और हमारे ऑडियंसेस के लिए स्किन प्रॉब्लम्स और ये जितने भी मेरे क्वेश्चंस हैं उनको इतना आसान बना दिया कि मैं जानती हूँ कि हमारी जो ऑडियंसेस हैं, जो भी ये शो देखेंगे, उन्हें अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो घर पर ही ट्रीट करेंगे, और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना इग्नोर भी नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारे शो पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जी थैंक यू रजनी जी, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आप सभी देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एसक्यूब टीवी ग्लोबल।